Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we will discuss some important multiple choice questions as well as some important very short questions of chapter 1, the solid state of class plus 2. Yesterday I have uploaded one video indicating some important key points of chapter 1, the solid state, and I hope that all of you have seen that video. If not so, then just watch that video also. Let's start our topic. In starting, we will discuss some important multiple choice questions. First question is, which of the following is an amorphous solid? And this question comes in HBSC 2018 and set C. So, amorphous solids. So, first of all, what are amorphous solids? We know about crystalline solid and amorphous solid. क्या होते हैं crystalline solid? Those solid which have regular arrangement of constituent particles, जिनमें constituent particle का arrangement regular है, and amorphous क्या हैं? Which have irregular arrangement of constituent particles. So in this case, आपने पढ़ा है glass के बारे में. Glass is a super cold liquid, and that is a amorphous solid because it has character of fluidity. Same way, say rubber and plastics, they are also amorphous solids. You have studied in the examples, glass, rubber, plastics. They all are the amorphous solid. So our answer is all. It means our correct answer is D. So this is our first question. Next question. The number of tetrahedral voids in FCC unit cell. Now we have to find out the number of tetrahedral void in FCC unit cell. We know if the number of particles are n, then total number of tetrahedral voids they are also n. Total number of tetrahedral voids it is 2 times of n. So सबसे पहले तो हमें n पता होना चाहिए number of particles क्या है. And we know the number of particles per unit cell they are represented by z. तो हम पहले क्या निकालेंगे z for FCC. So z होता क्या है number of particles per unit cell. And in case of FCC, face-centered cubic unit cell, we know the 8 particles are present at corner and 6 particles are present at face center. तो corner वाले का contribution क्या है 1/8 और corner में पड़े कितने हैं 8 plus 6 particle at face center. Face center का contribution क्या है 1/2 और total face center में पड़े कितने हैं 6. जब हम इसे solve करें 1 plus 3, answer is 4. So in the case of FCC, the total number of particles per unit cell that are 4. So number of particles in FCC that is equal to 4. Number of octahedral voids available. अब octahedral voids कितना होता है? It is equal to the number of particles. तो यदि number of particles 4 है तो ये भी क्या होगा 4. And number of tetrahedral voids available वो क्या होगा? जितने हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल हैं या जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनका 2 टाइम्स. तो 2 into 4, आंसर इज 8. सो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, आंसर क्या आएगा 8, दैट इज ए. सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what type of solids are electrical conductors, malleable and ductile? आपने पढ़ा on the basis of forces of attraction, solids are of 4 types. Solids जो हैं crystalline solids are of 4 types. Crystalline solids कौन से 4 टाइप के थे? That is ionized solids, covalent solids, metallic solids and molecular solid. These are the 4 types. अब यदि हम बात करके चलें कि हमारे पास ये कैरेक्टर जो हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के, इट मींस substance should conduct electricity. Second thing, malleable. Malleable means it can be converted into thin sheets by hammering. हथौड़े से मारने पर उसे चादरों में बदला जा सके. And ductile, it can be drawn into thin wires, यानी कि खींचने पर तारें निकाले जा सके. तो ये सब कैरेक्टर किससे मिलते हैं? आप जानते हैं malleability and ductility. These two are the characters of metals. So our answer is
A is covalent solid, metallic solid, ionic solid, molecular solid. So our answer is B, that is the metallic solid. Next question. What are the number of lattice points in edge-centered cubic unit cell? अब हमें फाइंड आउट करना है lattice points. And we know in a unit cell the lattice points होते क्या हैं? All the points, आपने लेटर 6 पढ़ा, all the points present in a unit cell are called lattice points and each point represent one constant particle. So अब हमें पूछा क्या है lattice points in edge centered cubic unit cell. अब क्या होता है edge centered cubic unit cell? जब बात आती है edge centered की, edge centered का मतलब क्या है? 8 particles are present at corners. I am trying this. We know these are the corners. 8 particles are present at corners. While 12 particles are present at 12 edge centers. अब edges होते क्या हैं? The lines joining the two adjacent corner. जैसे इस कॉर्नर को इससे जोड़ा है, इस कॉर्नर को इससे जोड़ा, तो ये लाइन को क्या लेंगे? एज. तो इन सभी एजेस के सेंटर पे भी एक ही पार्टिकल पड़ा है. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now standing line 9 10 11 12. So you are observing 8 particles are present at corners while 12 particles are present at an edge center. And each particle is called, or each particle है कहेंगे, या each point is called lattice point, क्योंकि lattice point ही particle को show करते हैं. So total number of lattice point कितने होंगे? 8 plus 12, that is 20. So our answer is D, that is the correct answer, D. So this is the number of lattice points in edge centered cubic unit cell. Next question is, which of the following exists as कोवलेंट क्रिस्टल्स इन सॉलिड स्टेट? कंडीशन है आपके पास कि कोवलेंट सॉलिड भी होना चाहिए और साथ में क्या है, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए. सो आप देखेंगे हमारे पास इसमें फास्फोरस, आयोडीन, सिलिकॉन एंड सल्फर. सो आंसर इज आयोडीन. सो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज आयोडीन जो है इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड ऑल आर कोवलेंट सॉलिड्स. Next question. The percentage of empty space in body centered cubic unit cell. कि BCC में empty space कितना है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, वो सीधा क्या देते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, और सीधा वो 68% को मार्क कर देते हैं. तो क्या होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी? The percentage of the volume occupied by all the constant particles in a cubic unit cell. तो आपने पढ़ा है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक में कितना है? 52.4%. परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC में कितना है? 68%. एंड परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC वो कितना है? 74%. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड. बट इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस. तो एम्प्टी स्पेस का यदि हमें परसेंटेज निकालने तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा. सो द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्वेश्चन HBSC 2017 में आया है, सेट बी में आया है. आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं. इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा. अब हमसे बात करते हैं एम्प्टी स्पेस की. सो एम्प्टी स्पेस क्या होगा? जो स्पेस ऑक्युपाई है या जो वॉल्यूम ऑक्युपाई है उसको माइनस करना है 100 में से. तो BCC है, BCC में हमारे पास परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 68%. तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC वो क्या होगा? 100 minus 68, that is 32%. So A is 74, B is 62, C 32, D 26. So our C answer is right. The correct answer is C. Next question. What is the coordination number of any constituent particle in body centered cubic unit cell? अब बात आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में.
आपको मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, तो वहां मैंने बताया कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या सीसीपी है। इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वहां क्या इतना होता है 6। और यदि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। सो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आंसर आया 8। सो सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the coordination number of any constant particle in hexagonal closed packing in 2 dimensions? अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए कांस्टेंट पार्टिकल, के कांस्टेंट पार्टिकल के कितने नेबर्स नियरेस्ट हैं, साथ वाले हैं जो उसे टच कर रहे हैं। और आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागन मीन 6, so in this case each constant particle is in touch with the 6 other constant particle। तो जब 2 डायमेंशन है तो याद रखिएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और यदि हमारे पास 3 डायमेंशन है तो वहां 12 है। सो इन दिस केस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब बात आती है ग्रेफाइट। We know graphite is the example of covalent solid and all the covalent solids are bad conductor of electricity, ये आपने पढ़ा। लेकिन वहां एक एक्सेप्शन थी ग्रेफाइट की। ऐसा क्या है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है, इवन +1 में 10th में भी पढ़ा है कि जो ग्रेफाइट है इन दिस केस द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp2। द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन है एंड इन दिस केस ईच कार्बन एटम इज हैविंग 1 फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन and this free valence electron is responsible for the conduction of electricity. So graphite conduct electricity, it is due to the presence of free valence electron। यहां लोन पेयर नहीं है, ना ही केटाइन है ना ही एनायन है, तो इसमें ऑप्शन क्या है जो हमारे पास राइट आंसर इज फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो आवर आंसर इज बी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the total number of atoms in a face centered cubic unit cell FCC। ये क्वेश्चन हमारे पास HBSC 2018 में आया, सेट सी में आया है। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC, यदि बात करके चले FCC की तो हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कैसे निकाला था, हम जानते हैं FCC में क्या है 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1/8 इंटू 8 एंड 6 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया था। जब इसे सोल्व किया तो 1 + 3 आंसर क्या आएगा 4। सो यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछते हैं या इवन रैंक ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दीज 3 आर द टर्म्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एंड रैंक ऑफ यूनिट सेल। तीनों एक ही चीज है, तीनों को ही जेड से डिनोट करते हैं एंड जेड वैल्यू फॉर FCC आंसर इज 4। सो 1 6 2 4, so D is our right answer, D, that is the 4। next question, I hope that you all are learning a lot and everything is crystal clear। next question is what is the radius of tetrahedral void if the radius of any constant particle is capital R। अब हम जानते हैं in the case of packing there are 2 type of void, one is octahedral void, second is tetrahedral void। octahedral void क्या है, जो 6 कांस्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और tetrahedral void क्या है, जो 4 कांस्टेंट पार्टिकल के साथ टच में है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। अब बात आती है कि यदि हमारे पास tetrahedral void है तो उसका रेडियस क्या होगा। आप ये भी जानते हैं कि octahedral voids are bigger in size than the tetrahedral void। तो यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं 0.414, 0.144 R, 0.414 R, 0.225 R and R। R means the size of void is given equal to the constant particle and this is not so, so D is our wrong answer। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास, क्योंकि कभी भी void का साइज जो है हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल के साइज के बराबर नहीं होता। अब आता है कि A, B and C की, तो we know that the radius of
octahedral void is 0.414 R, and radius of tetrahedral void, it is 0.225 R. So 0.225 R is our right answer. So answer is C. Next question. What is the value of Z, number of atoms per unit cell for cesium bromide? आपको एग्जांपल जरूर याद रखने हैं, जैसे हमारे पास सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, ये सब किसके एग्जांपल हैं, कौन सी यूनिट सेल के हैं? दे आर द एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल हैं हमारे पास. एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड. अब यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर में निकालते हैं, Z वैल्यू निकालते हैं, Z फॉर BCC, देन वी नो 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो 1/8 into 8 प्लस 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 into 1, तो आंसर क्या आता है 2. तो BCC में Z वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2. आंसर मींस हमारा आंसर A जो है दैट शुड बी राइट आंसर. लेकिन आपको यदि याद हो, मैंने डेंसिटी के न्यूमेरिकल के टाइम पे कंडीशंस बताए थे. हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू Z into M अपॉन A क्यूब into N0, और यहां Z क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. और वहां मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था दैट नॉर्मली द वैल्यू ऑफ Z फॉर BCC इज 2, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड. In this case, they are having BCC structure, and in this case, the value of Z is 1 instead of 2. तो यहां पर इन तीनों के केस में, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड के केस में, सीजियम आयोडाइड सॉरी, सो इन तीनों के केस में BCC होने के बावजूद Z वैल्यू 2 की बजाय क्या है? 1. सो इन दिस केस A is 2, B is 4, C is 1, D is 3, तो C is our right answer. इस एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि नॉर्मली BCC देखते ही स्टूडेंट्स Z वैल्यू 2 पुट अप करते हैं, जबकि यहाँ सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, इन तीनों में एक्सेप्शन है कि BCC है, लेकिन यहाँ Z वैल्यू क्या है? 1 है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस R इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC. जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं SCC, this is the simple cubic unit cell, and we know in case of simple cubic unit cell the particles are present at corner. Let as length of cubic unit cell is A. यदि as length हमने A माना, then it is observed that the two particles present at two adjacent corners will touch each other. अब एक पार्टिकल ये ले लें, दूसरा पार्टिकल ये ले लें. These two particles are touching each other. Suppose R is the radius of first particle, R is the radius of second particle. तो ये हमारे पास AB क्या है? This is the as length. AB इक्वल है A के, और A किसके इक्वलेंट होगा? R plus R, that is 2R. So A equal to R plus R, that is 2R. So in case of simple cubic unit cell, as length is equal to 2 times radius. So first में A equal to 4R है, second में A equal to R, third में A equal to 2R, fourth में A equal to 3R. तो A equal to 2R. This is our right answer. So correct answer is C. Next question. Which substance will show both Schottky and Frankel defect? ये मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि Schottky defect में क्या होता है? The equal number of cations and anions are missing from the lattice side. While in case of Frankel defect क्या है? One cation is missing from its lattice site and it occupies its nearest interstitial site. तो ये मैंने आपको बताया. तो वहां पर मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी और एक स्पेशल सब्सटेंस का नेम बताया था, दैट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. This is the compound and it shows both Schottky and Frankel defect. So A is NaCl, B is AgBr, C is CaCl, D is ZnS. So AgBr is the right answer. That is the silver bromide B.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ए कंपाउंड। हमने डिफेक्ट्स के टॉपिक पढ़े और उसमें हमने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसमें अनायनिक वैकेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या था अनायनिक वैकेंसी कॉन्सेप्ट? whenever one anion is missing from its lattice site and the anionic vacancy so created, अनायन की जाने के बाद जो जगह खाली बच जाती है that is occupied by an electron, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरी जाती है, and that electron is responsible for the color of compound, और वही कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब याद कीजिए उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या बताया था? दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। सो ये बाकी क्या देखें, स्कॉट के डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, डिफेक्ट का नाम नहीं है। एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन तो इस चैप्टर में ही कहीं नहीं आया है। सो ए एफ सेंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोपिंग ऑफ सिलिकॉन with which atom of the element gives a p-type semiconductor। आप जानते हैं सिलिकॉन क्या है? दिस इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट, और जब हम इसकी डॉपिंग किसी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ करते हैं, देन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड आर एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट जिस समय हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी क्या है? जैसे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट या ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम, देन इन दैट केस देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस होल्स आर प्रेजेंट, और जब होल्स होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज सल्फर। वी नो सल्फर इज ए ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। इन दोनों को देखें तो दीज टू आर द इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ये दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बात आते हैं जर्मेनियम की। हम जानते हैं जर्मेनियम क्या है? वी नो अबाउट ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। इसमें क्या थे हमारे पास? 5 एलिमेंट थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। सो दिस इज द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो सिलिकॉन के अंदर यदि जर्मेनियम डालेंगे ये तो इंप्योरिटी के रूप में एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 13 and this is a electron deficient impurity, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी होगी तभी जाके क्या है हमारे पास? होल्स की फॉर्मेशन होगी, और होल्स की फॉर्मेशन होगी तो सेमीकंडक्टर कौन सा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड्स? A increases, B decreases, C remains same, D doubles। अब बात आती है मेटालिक सॉलिड्स की। In the case of metals, we know the conduction of electricity is due to the presence of mobile electrons, and in case of metallic solid, the other particles are positively charged kernels, और positively charged kernel कैसे हैं? They are fixed at their position, but whenever the temperature increases, जब temperature increase होगा, then these positively charged kernels starts vibrating, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, and they create hindrance in the flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट डालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। सो बी इज आवर राइट आंसर। इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस विल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances will have small magnetic movement? हमने पढ़ा था मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। उसमें हमने लास्ट के 3 पढ़े थे, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन दैट केस मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। इन केस ऑफ फेरीमैग्नेटिक some are in one direction while some are in opposite direction, और एंटी फेरो में अपोजिट थे। तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैग्नेटिक में मैक्सिमम आई थी, एंटी फेरोमैग्नेटिक में 0 आई थी, और फेरोमैग्नेटिक में क्या था? फेरी मैग्नेटिक में स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट? सो आंसर इज सी, दैट इज द फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज
द टेम्परेचर अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, antiferromagnetic substance and ferrimagnetic substance will convert into paramagnetic substance. हम जानते हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, these three are the magnetically aligned solid, और इन सब में मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमारे पास अरेंज्ड हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक क्या हैं? In this case the magnetic moments are random. So whenever the ferromagnetic substance, antiferromagnetic substance and ferrimagnetic substance they are heated, then above a particular temperature, a temperature को क्रॉस करने के बाद their magnetic movements become random and they will convert into paramagnetic substance, and that temperature is called Curie temperature. So A critical temperature wrong answer है, B Boyle's temperature wrong answer है, C transition temperature भी wrong answer है, and D is our answer, that is the Curie temperature. Next question. The number of tetrahedral void in BCC unit cell, I think no, in FCC आया था हमारे पास क्वेश्चन, अब BCC की बात है, तो हम जानते हैं for BCC Z value is 1/8 into 8 plus 1/2 into 2. Oh, sorry, Z. 1 minute. So sorry, one particle is present at body center. So body center का contribution 1 into 1. So आंसर क्या है 2. तो BCC में Z वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल क्या है 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्विवेलेंट, तो वो कितने होंगे 2, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे उसके 2 टाइम्स, तो 2 2 4. So number of tetrahedral voids in BCC unit cell, answer is 4. So A is our right answer. Next question. These all are the some important multiple choice questions. I hope that you all learned that multiple choice questions. Just do practice. Now I am starting some important very short questions. Our first question is, what type of stoichiometric defect is shown by ZNS? ये क्वेश्चन HBSE 2019 में भी आया है, CBSE 2017 में भी आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो इसे अच्छे से देखिएगा। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या हैं? इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्कोटकी डिफेक्ट, सेकंड इज फ्रेंगल डिफेक्ट। अब स्कोटकी डिफेक्ट में क्या था हमारे पास? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द लैटिस साइड। सो उस केस में कंडीशन थी द आयंस मस्ट हैव सिमिलर साइजेस, while in case of Frankel defect there is a condition that a large cation is removed from its lattice side and it occupies its near interstitial side, और आपने वहां पर पढ़ा the ions should have large difference in the size of cation and anion, and secondly they should have low coordination number. So इस केस में हमारे पास ZNS की बात है, तो ZNS में Frankel effect की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, so Frankel defect is our answer. Our next question is, the introduction of small amount of impurities into a pure crystal is called. अब कोई प्योर क्रिस्टल है, हमने उसमें इंप्योरिटी डालनी है, तो इंप्योरिटी डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यह क्वेश्चन HBSE 2019 में आया है, एंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। इसे क्या बोलते हैं? डोपिंग। आयनिक सॉलिड में डोपिंग विद इंप्योरिटीज पढ़ा है, और कोवलेंट सॉलिड्स में हमने पढ़ा है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। सो इंप्योरिटी डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद इंडियम? अब हम जानते हैं कि जर्मेनियम जो है दिस इज ए ग्रुप 14 एलिमेंट। हमें ये देखना है कि जो हमारे पास इंडियम डाल रहे हैं, इंडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पहले हम ग्रुप 13 की बात करें। ग्रुप 13 में 5 एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और साथ ही साथ हमें ग्रुप 15 भी पता होना चाहिए। ग्रुप 15 में है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब हमने जर्मेनियम के अंदर डाला क्या है? इंप्योरिटी के रूप में क्या डाला है? इंडियम।
और आप देखेंगे इंडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, पी टाइप से। सॉरी, इंडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, ग्रुप 13 से। इट मींस इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लेस है। इट मींस दिस इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डाली जाएगी ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर, या उनके सिलिकॉन को हटा के या जर्मेनियम को हटा के, तो उस केस में जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो आंसर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of magnetism is shown by a substance if magnetic moment of domains are arranged in same direction? ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2016 में आया है, ध्यान से समझिएगा। अब बात आ रही है मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइंड। हम जानते हैं there are three types of substances in which magnetic moments are aligned. One is ferromagnetic, second ferrimagnetic, third is antiferromagnetic. तो ferromagnetic में क्या था, they are aligned in one direction. और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा भी क्या क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो। तो ये कौन सा सब्सटेंस है, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस शोज that FeO has a non-stoichiometric composition with formula F is 0.90. Give reason. CBSE 2018, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2018 में आया है। अब FeO को यदि हम देखें तो दिस इज ए नॉन स्टोइचोमेट्रिक, दिस इज हैविंग ए नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपोजिशन। तो क्लियर हो गया कि यदि नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपोजिशन है इट मींस इट विल शो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप के हैं, वन इज मेटल एक्सेस, सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी। तो जब मेटल एक्सेस है तो उसमें केटाइन पार्ट बढ़ेगा। इट मीन यहां 0.95 की बजाय क्या होगा हमारे पास, यहां 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइंस यहां पर सेम नहीं रहते, रेशो सेम नहीं रहेगी, और यहां पर क्या होना चाहिए, केटाइन बढ़ना चाहिए। तो इट मींस दिस इज ए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें हुआ क्या है, वी नो Fe exists in nature in the form of Fe+2 and Fe+3. So in the case of FeO, जो ये फार्मूला शो कर रहा है F is 0.95 ओम, इसमें क्या हुआ है, इन दिस केस सम ऑफ द Fe+2 ions are replaced by Fe+3 ions in such a way so that electrical neutrality is maintained. इट मींस यहां कौन सा डिफेक्ट है, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं, व्हाट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। What is metal deficiency defect? The defect in which cations of lower oxidation state are replaced by cation of higher oxidation state of same element. Fe को हटा के हमने Fe रखा है, in such a way so that electrical neutrality is maintained. This is called metal deficiency defect. So in this question, the metal deficiency defect is shown. So our answer is metal deficiency defect. Next question. The next question is, why does ZNO appears yellow on heating? कि ZNO को जब हम हीट करते हैं येलो कलर का क्यों हो जाता है? This question comes in CBSE 2019. अब बात आती है कि क्या होता है ZNO को हीटिंग करते समय। जब हम ZNO को हीट करते हैं, then it dissociate to form Zn+2 ion plus half O2 plus 2 electron. Then these Zn+2 ions are extra and they will occupy interstitial site. And these electrons will occupy nearest interstitial sites. So ऐसा कब होता है? And in this case, ऐसा कब है हमारे पास? नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में, कौन से डिफेक्ट में? मेटल एक्सेस डिफेक्ट. So this will show metal excess defect.
and these electrons on absorbing energy will jump into the excited state, and whenever these electrons will jump back to the ground state, then they release energy in the form of radiations, and these radiations are of yellow color. That's why Zn appears yellow on heating. This is our answer. Next question. What is the relationship between as length A and radius R in BCC, body centered cubic unit cell? अब बात आती है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की. मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक A equal to 2R. In case of face centered cubic याद रखिएगा A equal to 2 root 2R, and in case of body centered cubic A is equal to 4 by root 3R. So answer is A is equal to 4 by root 3R. This is our answer. This is the relationship between as length A and radius R in body centered cubic unit cell. साथ ही साथ आप FCC और SCC याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. Next question. The doping of NaCl with SrHCl2 is which type of defect? अब हम यहां देख रहे हैं NaCl में डोपिंग किससे की है? SrCl2 से. We know NaCl contain Na+1 ion and SrCl2 contain Sr+2 ion. It means हमने Na+1 ion को हटाया है. Some of the Na+1 ion is replaced by Sr+2 ion in such a way so that electrical neutrality is maintained. इस वाला हम 2 Na+1 हटाएंगे और 1 Sr+2 रख देंगे. तो जब हम Sr+2 रख रहे हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो हम क्या देखेंगे? इन दिस केस दिस इज ए कैटायन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. आपने पढ़ा था एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक पढ़ा था इंप्योरिटी डिफेक्ट. इन द केस ऑफ मेटल deficiency defect, the cations of lower oxidation state are replaced by cation of higher oxidation state of same element. लेकिन यहां पर क्या है? cation of lower oxidation state are being replaced by the cation of higher oxidation state of different element. So वो यदि सेम एलिमेंट के एटम सेम एलिमेंट के केटायन रखते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तब तो डिफेक्ट का नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. और दूसरे वाले केस में ये कौन सा नाम है? दैट इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट, यदि डिफरेंट एलिमेंट्स के केटायन रखते हैं. तो दिस इज impurity defect, and here Sr+2 जो है this will act as impurity, and the process of addition of this impurity is called doping in ionized solids. I think everything is clear. Our next question is, out of KCl and AgCl which shows Schottky defect and why? ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है हमारे पास. तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशंस यदि ध्यान करें, इन स्कॉटकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर रिमूव फ्रॉम द लेटिस साइड, और वहां एक कंडीशन थी हमारे पास द कैटायंस एंड एनायंस मस्ट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस. और फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या था? एक कैटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स लेटिस साइड एंड इट ऑक्युपाइज द नियरेस्ट इंटरस्टिशियल साइड. तो बात आ रही है साथ में स्कॉटकी इफेक्ट में, ये तो कैटायंस और एनायंस के नंबर की बात आ गई. यदि साइजेस की बात करें तो हमारे पास कैटायंस एंड एनायंस हैव सिमिलर साइज इन स्कॉटकी डिफेक्ट, और हमारे पास उसमें जो है देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इन फ्रैंकल डिफेक्ट. अब आपसे पूछा है इन दोनों में से विच वन विल शो स्कॉटकी डिफेक्ट, तो स्कॉटकी डिफेक्ट कौन शो करेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, बिकॉज इन दिस केस कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइजेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of substances would make better magnets? एक फेरोमैग्नेटिक है और एक फेरीमैग्नेटिक. It depends upon the magnetic moments, net magnetic moment. We know in case of ferromagnetic substances, the magnetic moments are aligned in one direction. Net magnetic moment is very high. And in case of ferromagnetic substances, फेरो में क्या है? सभी एक डायरेक्शन में है. And in case of ferromagnetic substances, some magnetic moments are in one direction while some are in opposite direction, so net magnetic moment is small. तो जिसमें net magnetic moment ज्यादा होगी, that will be preferably used for making the better magnets. So answer is ferromagnetic substances.
So these all are the multiple choice questions and very short questions covered in the chapter 1, the solid state. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video, you can comment my video, and you can subscribe my channel, Ultimate Science by Satish Kalra. Thank you.